आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंस स्टडीज़ में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लूप्स एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप एंड देन द सिंटेक्स, आफ्टर दैट वर्किंग एंड आफ्टर दैट फ्लो चार्ट एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल। तो लूप क्या होता है? इन ऑर्डर टू रिपीट एनी ब्लॉक ऑफ कोड until the specified condition is met, means until the conditions is false, condition is met. So this is the definition of loops. Now types of loop. So in the type of loop we have three. First is for loop, second is while loop, and third is do while loop. First of all, we are going to study today about for loop. So we are going to see syntax of for loop, working, flow chart, and example of for loop. Now first of all, let us see the syntax of for loop here only. Syntax. Okay, so syntax is for initialization semicolon, test expression semicolon, update statement. ठीक है, braces open, braces closed, body inside if, sorry, inside for, not if. Okay, so it is the syntax of for loop. Now we are going to see the working of for loop by using the syntax. Okay, for loop, and this is the syntax. Now working. Point number one. First of all, the initialization statement is initialized. Initialization statement is initialized. Now, point number two. Now, point number two is the test expression. The test expression is evaluated. The test expression is evaluated. So if the text expression is true, we move in the body of for loop. Okay, and after that the update statement is updated. Update statement is updated. Again the text expression is evaluated. Again, if the text expression is true, then body of the for loop, after that update statement. Again the text expression is evaluated. If it is true, then body of the for loop, then update statement. Again the text expression is evaluated. Means it is goes on circle to circle until the text expression is false. तो जब तक ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होगा तो हम लूप से बाहर नहीं आएंगे. ये लूप हो गया एक तरीके से. लूप चलते जा रहे. और कब रुकेंगे? जब रुकेंगे जब ये जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा ये फॉल्स हो जाता है. तो जैसे ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे. लूप से बाहर, लूप्स टर्मिनेट. दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ फॉर लूप बाय यूजिंग द सिंटेक्स. नाउ मूविंग ऑन द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप. After the flow chart, we are going to use the for loop, and using that for loop, we are going to see the program. Now, flow chart of for loop. Okay, flow chart of for loop. Now we have seen that first of all initialization statement
is initialized. Okay, first of all, initialization statement is initialized. After that, test expression is evaluated. Test expression is evaluated. If the test expression is true, then we move inside the body of if. Body of for, not if. Okay, because we are seeing the for loop. After that, the update statement is updated. Update statement. ठीक है? Then after the update statement, we again goes to the text expression. If the text expression is true, we move inside the body of the for loop, and then the update statement is updated. Again, text expression is evaluated. If the text expression is true, then we move inside the body of for and the update statement again until the text expression became false. So suppose the text expression became false, we will move outside the for loop. This is the flow chart of for loop. ठीक है? By using the syntax. So मैं ये मान रहा हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि for loop कैसे काम करेगा, और इसी for loop को लेते हुए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे to print the numbers from 1 to 10 by using for loop. ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल देखने के बाद. तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यूजिंग for loop. एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, तो प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 कंटिन्यूसली. मीन्स हमें ऐसा देखना चाहिए कुछ आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इन द आउटपुट स्क्रीन कुछ ऐसा आउटपुट दिखना चाहिए. तो ऐसे आउटपुट देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप. और कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाते हैं. सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड होगी जो हम पहले करते थे यूजिंग द सिंटैक्स studio.h. देन मेन फंक्शन खुलेगा, इंट मेन ब्रेसिस ओपन ब्रेसिस क्लोज्ड रिटर्न 0. आप क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट, सपोज आई डिक्लेयर करा मैंने. ठीक है, आई एक वेरिएबल हो चुका है. ठीक है, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है. तो कितने बाइट का ये 2 या 4 बाइट का अकॉर्डिंग टू द इंट डाटा टाइप. 2 या 4 बाइट. ठीक है, नाउ अब क्या यूज करेंगे, फॉर लूप. फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. इनिशियलाइजेशन में कर रहा हूं आई इज इक्वल टू 1 से. ठीक है, आफ्टर दैट टेस्ट एक्सप्रेशन आई इज लेस देन इक्वल टू 10. हमें कहां तक चाहिए, 10 तक चाहिए. कहां से, 1 से. सो 1 से लेकर 10 तक. तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो होती है वो क्या बताती है, कहां से, और जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो क्या बताता है, कहां तक. मीन्स कहां से कहां तक. तो ये हमने कर दिया कहां से कहां तक, सेमीकोलन. देन आई प्लस प्लस. आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, मीन्स आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. इसका मतलब क्या है और आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले मैं बता दूं. आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और आई प्लस प्लस दोनों सेम होते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 के बाद हमें 2 चाहिए, मतलब 1 + 1 चाहिए, 2 + 1 चाहिए, फिर 3 + 1 चाहिए 4. मीन्स हर बार हमें +1 करना है. ठीक है, किसमें, आई में. सपोज आई 1 है तो 1 + 1 क्या करेंगे, तब 2 आएगा. 2 + 1 करेंगे तब 3 आएगा. 3 + 1 करेंगे तब 4 आएगा. तो वी नीड इंक्रीमेंट ऑफ 1 एट ईच स्टेप. सो फॉर लूप का बेसिस खुला. अब यहाँ पे सीधा प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट्स %ld डबल कोट्स कॉमा आई सेमीकोलन फुल लूप बंद हुआ. ठीक है, ये है पूरा प्रोग्राम. ना अब इसका रन करते हैं. रन कैसे करेंगे इसका वर्किंग समझाता हूं पूरा. सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इनिशियलाइज होगी. चलो आई में क्या आ गया, 1. क्या आ गया, 1 इनिशियलाइज हो गई. आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये ट्रू है कि फॉल्स. ठीक है, अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. इज इट ट्रू और फॉल्स. यस, 1 इज लेस देन 10. इट इज ट्रू. तो जैसे ये ट्रू होता है हम क्या जाएंगे, बॉडी ऑफ द फॉर लूप. अब क्या प्रिंट होगा, 1, क्योंकि आई में क्या है, 1 प्रिंट हो गया. नाउ अपडेट स्टेटमेंट इज अपडेटेड. आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. आई क्या है, 1. 1 + 1 आई क्या हो गया, 2. ठीक है, अब आई 2 हो चुका है. जैसे 2 आई फिर चेक करेंगे टेक्स्ट एक्सप्रेशन से. 2 इज लेस देन इक्वल टू 10. यस इट इज ट्रू. प्रिंट कर दो 2 प्रिंट हो गया. आई क्या था, 2. ठीक है,
2 हो चुका था। नाउ i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i इज इक्वल टू 2 प्लस 1, i क्या हो गया 3, i में क्या आ गया 3। अब हम फिर चेक करेंगे, ठीक है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस इट इज ट्रू, ठीक है। ट्रू होगा 4 के अंदर आएंगे, प्रिंट कर देंगे 3, ये चलता रहेगा 4 5 6 7 8 9। अब 9 पे आते हैं, सपोज i क्या हो गया 9, ठीक है, मान लो i हो गया 9। अब i 9 हो चुका है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10। टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स ये देखते हैं। ये ट्रू है, फॉर लूप में आते हैं और 9 प्रिंट करवा देते हैं, 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। नाउ i इज इक्वल टू आई प्लस 1, i इज इक्वल टू 9 प्लस 1। अब i क्या हो गया 10। अब फिर चेक होगा 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस इट इज ट्रू बिकॉज इट इज इक्वल। ट्रू हुआ 4 के अंदर आएंगे, प्रिंट हो जाएगा 10 क्योंकि i में क्या है अब 10, प्रिंट हो गया 10। अब i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, तो i क्या हो चुका है 10 प्लस 1, i क्या हो गया 11, i में क्या आ गया 11। जैसे i में 11 आया, अब यहाँ पे चेक करा हमने 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ फॉर लूप से बाहर आए, रिटर्न 0, ठीक है, और ये बेसिस क्लोज हो गया और प्रोग्राम क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमारा आउटपुट ये मिलेगा। तो इससे हमने क्या सीखा, जैसे ही मैंने बताया था आपको कि ये लूप चलता रहेगा जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप टर्मिनेट हो गया और हमें ये आउटपुट दिख गया प्रोग्राम का, ठीक है। तो हमें करना क्या था, तो प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, और हमने 1 to 10 नंबर प्रिंट करवा दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप, the syntax of for loop, the working of for loop and how to use for loop in the program. So हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।